हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल, इवन वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर इन 20-30 मिनट्स। ओके, चलिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो हियर इफ़ यू सी दिस वाइट बोर्ड, ओके, ये पूरा वाइट बोर्ड को यू कैन टेक एज ए प्लेन, यू कैन टेक एज ए प्लेन। नाउ व्हाट इज प्लेन? उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये फ्लैट सरफेस है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेन। ओके, एंड प्लेन हैज़ 2 डायमेंशन, प्लेन ऑलवेज हैज़ 2 डायमेंशन। ओके, सो हियर आई एम ड्राइंग वन स्ट्रेट horizontal line, okay, and this line I am drawing, which is the vertical line, correct? So this line is called x axis. So x axis has got another name, which is called horizontal line, correct? And this line is the y axis, and y axis you can call it as, you know, vertical line. Okay, now this vertical and horizontal line, you see, intersect at this point. This point is called origin. So what is the name of this point? Origin, correct? Now if you see, this 2 line system divides the entire plane into 4 parts. Okay, so this first part, this is first part, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। क्लियर है? सो द लाइन, 2 line x axis and y axis divides the plane into 4 parts. Part number 1, part number 2, part number 3, part number 4. और इस पार्ट को, इस जगह को बोलते हैं क्वाड्रेंट. व्हाट वी कॉल क्वाड्रेंट. सो दिस यू कैन कॉल इट एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एक्सक्यूज मी, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, सो समझ में आ गया भाई? तो ये फर्स्ट, सेकेंड, third, fourth, and this is origin. Now we call origin as 0, 0. correct? तो origin का जो एड्रेस है that is 0, 0. क्या मैंने बोला? एड्रेस, करेक्ट. इसी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं इस जगह पे coordinate, correct? So that means every point will have an address here, and that address is called coordinate. I name this point as A, this point as B, this point as C, and this point as D. तो हर पॉइंट का बच्चों क्या होगा? एड्रेस होगा, और उसी एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट? Now I am going to tell you how to find the coordinates of a point. अब हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है? चलिए, now you can name this as 1, 2, 3, 4, 5. Let me take up to 5. So this is 1, 2, 5. Similarly, आप जब लेफ्ट में आ जाओगे, you have to name like -1, -2, -3, -4, -5, -6. क्लियर है? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, नाउ आई एम गोइंग अप अगेन. आई एम मेकिंग 1, 2, 3, 4, 5. आई एम कमिंग डाउन, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2. तो स्टूडेंट वीडियो ध्यान से देखिए,
उसके बाद आप लोग जो है फिर से इसको चला के नोट्स बना सकते हैं, या तो पॉज करके भी नोट बना सकते हैं. ओके, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव and this is negative. Correct. Now always this origin is the starting point. You have to start from the origin. Clear? Now suppose if you want to reach this point A, what you have to do, your first movement, kindly note carefully, I will call it as first movement. Okay, first movement will be either you have to move left or right. So this is the first movement. Okay, and from where you will start? You will start from the origin. Next comes your second movement. Okay, second movement will be either up or down. Correct. So what is the first movement? Origin, you will start, either you will move left or right. Then second movement you will move up or down. Right. Now suppose I say I want to, इसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, मैं मिट दूंगा मैं इसको भी. तो फर्स्ट मूवमेंट इज लेफ्ट और राइट, सेकेंड मूवमेंट इज अप और डाउन. राइट. Now I am rubbing completely this quadrant system also. आप उसको नोट कर लीजिए पहले से. ओके, सो दैट मैं पूरा ग्राउंड को खाली कर दिया हूँ एकदम, ताकि आपको समझने में आराम हो. और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर क्या करेंगे बताइए. तो सपोज आई वॉन्ट टू प्लॉट द पॉइंट A 2,3. Okay, so now I'm going to start from this origin. Correct. So from origin, the first movement I told you, left or right. This is 2, this is +2. So +2 means right side. So from here, यहाँ चल के यहाँ आ जाइए, यहाँ खड़ा हो जाइए. ठीक है ना. पॉइंट अभी तक मिला नहीं है, घर पहुँचे नहीं है अभी तक. नेक्स्ट इज 3. नेक्स्ट मैंने क्या बोला? अप और डाउन. So from 3 to the point is 3. So from here move 1 सीधा, या तो ऊपर या तो नीचे. याद रखिए, ये पॉइंट पहुंचने के बाद में आपको या तो ऊपर जाना है या तो नीचे आना है, और कोई मूवमेंट नहीं है. प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे. बिकॉज दिस इज, यू सी, डाउन इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव. सो नेक्स्ट पॉइंट इज 3 दैट इज पॉजिटिव. 1 2 3 you will reach here. Okay, this point, my dear student, you will call it as 2,3. Correct. So the first जो 2 है वो होगा लेफ्ट ऑब्लिक राइट, और जो 3 पॉइंट है ये होगा अप ऑब्लिक डाउन. क्लियर है ना. और एक एग्जांपल, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं. B -2,3. Now plot this point. You will start from the origin. This is what? Left or right? Negative, left. So -1, -2. And 3 is positive. You will move 1 2 3. ये point है. So this point is -2,3 and you will call it as B. ठीक है बच्चों. Once again थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. ओरिजिन से पॉजिटिव है तो उस तरफ राइट, और नेगेटिव है तो लेफ्ट, और वहाँ पहुँचने के बाद पॉजिटिव है तो अप, नेगेटिव है तो डाउन. क्लियर. लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन. करेक्ट. पॉजिटिव लेफ्ट, नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव लेफ्ट. समझ आइए लेफ्ट राइट क्या है. और पॉजिटिव अप, नेगेटिव डाउन. तो यानी आपको 2 मूवमेंट करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन. चलिए नेक्स्ट इज C. आई एम राइटिंग -2, -3. तो फर्स्ट वाला क्या है? लेफ्ट राइट. नेगेटिव है तो लेफ्ट. -1 -2. आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट -3. माइनस मीन्स कम डाउन. 1 2. सो दिस इज द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट. -2, -3. इसको नाम देते हैं C. नेक्स्ट इज D. D इज
I call it as 2 comma minus 3. So 2 comma minus 3 means this is left right up down, left right up down. तो ये आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव साइड में जाएंगे, 1 2, यहाँ रुक जाइए, -3 +3 बोले तो ऊपर, -3 बोले तो नीचे, -1 -2 -3. तो ये जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सॉरी +2 comma -3. ओके, यू कॉल दिस पॉइंट एज डी. इस तरह से आपको प्लॉट करना है पॉइंट को, करेक्ट. नाउ लेट मी गिव वन मोर पॉइंट ई. ई इज आई कॉल इट एज सपोज 2 0. ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 0, 2 लेफ्ट राइट, 0 अप डाउन. तो 2 चलते हैं ओरिजिन से. ओरिजिन दिस इज 1 2, पहुंच गए 2 में. उसके बाद अप डाउन में देखिए क्या है, 0. 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं. कुछ नहीं मतलब आपको इस पॉइंट से ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है. यू हैव टू स्टे एट द सेम पॉइंट, एंड दिस पॉइंट यू विल कॉल इट एज 2 0. एंड माय डियर स्टूडेंट, एंड दिस पॉइंट इज ई. करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट इज एफ. -4 0. -4 इज लेफ्ट राइट, 0 इज अप डाउन. तो -4 0 से शुरू करते हैं. -1 -2 -3 -4, यहाँ पहुँच गए. फिर 0, नेक्स्ट इज 0. 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, यहीं पे रुक जाना है आपको. सो दिस इज -4 0, एंड आई विल कॉल दिस पॉइंट एज एफ. करेक्ट. Now one thing to observe here is that you see this is x-axis. These 2 points lie on x-axis, correct? So whenever point lie on x-axis, you see this second number is always 0. Second number is always 0. Second number को हम लोग y बोल सकते हैं. First number is x. यानी on the x-axis, see on the x-axis y coordinate is 0. याद रखिए, very important point. If a point lie on x-axis, then its y coordinate will be 0. Then its y coordinate will be 0. Then its second number is 0. Similarly, I am writing one more point. I am writing 0 2. Okay. First number क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट राइट. नेक्स्ट नंबर अप डाउन. तो मैं ओरिजिन से शुरू करूँगा. फर्स्ट नंबर इज 0. 0 सेज दैट ना आपको लेफ्ट जाना है ना आपको राइट जाना है. ओके, तो वहीं आपको खड़ा रहना है. सेकेंड नंबर क्या बोल रहे हैं, 2. 2 मतलब अप डाउन, प्लस मतलब अप. फ्रॉम हियर यू विल रीच दिस पॉइंट. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस पॉइंट इज 0 2. मैं और एक पॉइंट बोल देता हूँ, h 0 -2. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेफ्ट राइट. सेकेंड पॉइंट क्या है, अप डाउन. 0 मीन्स आपको यहीं पे खड़ा रहना, ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है. और -2 यानी यू विल कम डाउन, यू विल रीच हियर दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज माय डियर स्टूडेंट 0 -2. ओके. नाउ हियर इफ यू सी, दिस पॉइंट इज G and this is H. Now you see G and H lie on y-axis, correct? And the point to be noted is that whenever point lie on y-axis, the first number is 0, यानी x axis is 0. ठीक है. तो आप इसको ऐसे रफली याद कर लीजिए. whenever point lie on x axis, y is 0, यानी सेकेंड इज 0. whenever point lie on y axis, the x is 0. am I right or wrong? तो x एक्सिस में y 0, y एक्सिस में x 0. क्लियर है एकदम, समझ में आ गया भाई. चलिए अब देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और चाइना का एग्जांपल मैं देता हूँ, ध्यान सुनिए. ठीक है भाई. अब इंडिया के लोग क्या बोलेंगे बताइए, चाइना 0 है, चाइना 0 है. अब बताइए चाइना के लोग क्या बोलेंगे, इंडिया 0 है, इंडिया 0 है. करेक्ट है. तो उसी तरह से x एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, y0, x हीरो y 0. और y एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है बताइए, y एक्सिस में y हीरो x 0. समझ में आया भाई. यानी इंडिया में इंडिया हीरो चाइना 0, और चाइना में चाइना हीरो इंडिया 0. तो याद रखना भाई. तो वंस अगेन सब मिला के बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना. x